Okay. Good morning, friends. Today it is our another session on Microsoft Excel, the spreadsheet program, which allows you to do calculations and analysis. And in fact, you may be needing little bit use of statistics later on. So Microsoft Excel also gives you the fundamental kind of statistical calculations for your data. So and very soon, I think by next week, we have to complete all these things. So that's why we are focusing now. Only MS Excel is remaining. Rest all other content they have been covered. So let us start with Good our morning, today's sir. session. Good morning, Arish. How are you, sir? And okay, we are fine. Thank you. Let us welcome Dr. Ashish Mishra once again to our session. And today again, he will discuss with you about the use of formula. And there are some other operations, plus the very important aspect of a spreadsheet program, that is how to draw charts and graphs. So with these few words, I am muting my microphone and I'm requesting Dr. Ashish to go ahead. Okay, thank you. Thank you very much, sir. Good morning, Mr. Sir, Ashish, sir. Good morning, Arish. So let us start with sharing of the screen first. सर कोरोना से पहले हम शेयरिंग वर्ड ज्यादातर पार्टीज में इस्तेमाल करते थे कि हाँ चलो सब शेयर करके खा लो। अब जब से कोरोना हुआ है सर स्क्रीन शेयर स्टार्ट हो गया। सर सेशन स्टार्ट करने से पहले क्वेश्चन है मेरा, वर्चुअल रियलिटी क्या होता है? वर्चुअल रियलिटी, yes चलो sir, डॉक्टर आशीष आप बताओ, बोलो बोलो। Virtual world, actually we are having this virtual classroom. It's also a classroom that is different from your physical classroom where we face each other directly, but it's a classroom also, but it is in virtual mode, that we are far away but we are at a certain platform, and that platform is your virtual classroom. Sir, you can elaborate it further, sir. अभी आप लोगों के साथ एक लिंक शेयर करता हूँ। देखो दो तीन टर्म्स हैं, एक है ऑगमेंटेड रियलिटी, एक है वर्चुअल रियलिटी। वर्चुअल रियलिटी होता है जहाँ पर आप एक सिमुलेटेड एनवायरनमेंट के अंदर हो, कंप्लीटली क्रिएटेड बाय कंप्यूटर सिमुलेशन। और ऑगमेंटेड रियलिटी होता है जहाँ पर मिक्स है फिजिकल वर्ल्ड और वर्चुअल वर्ल्ड का। जैसे मान लो आपके पास एक बुक है, उस बुक के अंदर सेल डिवीजन दिखा रखा है। अब सेल डिवीजन को आप देखोगे, कैसे देखोगे उसको? या तो माइक्रोसॉफ्ट से आप सेल स्ट्रक्चर पे जाओगे, तो उसमें क्या किया जाता है कि आपके किताब के अंदर जो फोटो है उसको वर्चुअली एक सिमुलेशन के द्वारा किया जाता है, तो वो फिजिकल वर्ल्ड और वो दोनों मिलकर ऑगमेंटेड रियलिटी हो गया। लेकिन वर्चुअल रियलिटी में कंप्लीटली आपको ऐसा लगता है कि आप वर्चुअल कंप्यूटर जनरेटेड सिमुलेशन है, उसको हम वर्चुअल रियलिटी बोलते हैं। मैं आप लोगों को, मेरा एक पेपर पब्लिश हुआ है अभी लास्ट वीक IEEE के जर्नल में वर्चुअल रियलिटी एप्लीकेशंस के ऊपर। उसमें हमने महात्मा गांधी आश्रम वार्धा का, राजघाट के ऊपर जो अपना समाधि स्थल है वो, और गयासुद्दीन तुगलक का जो फोर्ट है वो, ये कई सारी चीज़ें का हमने 3D वर्चुअल वर्ल्ड क्रिएट किया है। और आप सिंपली उसको लिंक पर जाकर क्लिक करोगे तो भी वो वहाँ पर उसमें आप उसको देख सकते हो। और ये मैं पेस्ट करता हूँ और मैं इसको आपके व्हाट्सएप ग्रुप में भी डाल दूँगा। आराम से आप क्लास के बाद इसको चेक करना। अभी माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की बात करते हैं। और अमन प्रेजेंट है? हाँ, आ गए।
अमन बेटा वो Yes, sir. अटेंडेंस का लिंक पोस्ट कर देना, ओके है ना? आपके पास सेव्ड है? सर, व्हाट्सएप ग्रुप पे डाल दिया अशर ने. ओके, ठीक है, वेरी गुड. ओके डॉक्टर आशीष, प्लीज गो अहेड. Okay, sir, sure. Sir, is my PPT visible? Coming up, yes, now it is visible. You can make it full screen. Okay, sir. Yes, it's full screen, sir. We have already discussed these formulas and function, and some of them were left out on the last day. We will be covering those left out portions of formula and function today, along with charts and graphs. But before that, I would like you to practice with me during the session if possible. If you are using your laptop or computer, then you can also simultaneously, if I allow you to calculate something or to find out something by applying function and formula in Excel, so you are requested to do it as if requires. Okay, these were the last slides. We'll simply skip these slides. Just for quick revision, I'm showing it to you. These were the functions that we have covered in the last session. Count A was left. Count blank. Minimum, maximum, length, and trim has been covered already. Covered. Today and now and an hour. We will see t-test if time allows. Then we calculate correlation, Pearson coefficient correlation, R, represented by small r. I'm just going to repeat these things for your quick revision. Formula always start with putting equal sign. Values in words must be written in inverted comma. Cell format must be set in general, not in any other mode. Space must be single as far as possible, otherwise it will show an error. Do not enclose numbers in double quotes as you do with words. Don't format numbers in Excel formulas. Match all opening and closing parentheses in your formulas. Make sure calculation options are set to automatic. Some basic tricks. Copy the same formula to other cells instead of retyping it. I will show it you again today. And delete formula but keep calculated values. If we are copying down a range of cell which was the outcome of some formula function, then the values can be retained without the impact of intervening impact of formula if we want to do that. Auto sum, auto average, very common. We should know what is pivot table. This is the theoretical background, and if possible I will take another class of you if your institute and other administrative formalities allow me to do that. Then I will try to cover it these tables in more details. Pivot table, what is this? Actually, this table makes it very easy to arrange and summarize the complicated data and drill down on the required details. Means we can easily manipulate means we can easily frame the data
and get its result as per our requirement. But these requirements and manipulation must be based on some logic. It allows us to transform columns into rows and rows into columns. I'm very sure that you all might be knowing what is a column and what is a row. And it allows grouping by any field and using advanced calculations on them. Pivot chart. With the help of pivot table, we can also prepare pivot chart. Can also be inserted or created with the help of these tables. With the what we can do with the help of pivot table, we can do these following things. First, we can group items, records, rows, columns into different categories. Count the number of items present in each category. Do summation of the items value. We can compute the average value. We can find out minimal or maximum values, etc. Then comes the conclusion. If we sum up all the characteristics of and utility of a pivot table, then we can say that it can be summed up as a pivot table is a very, very powerful tool to calculate, summarize, and analyze available data that lets us to see comparisons, patterns, and trends in our data. Pivot tables work a little bit differently depending on what platform we are using to run Excel. Means updated version of Excel will be having some more features, but almost all the commands used to be same with a little bit changes. Refer the follow. You will be having a link. It will be shared to you after the lecture. You can refer it, and you will be getting more out of it. So this was all about the pivot table. Now, what is pivot chart? Sometimes we feel hard to see and observe the big data or a picture when our raw data has not been summarized properly or systematically. For it, at first instinct may be to create a pivot table. But not everyone can look at the numbers because figures speak in more detail. For numbers, we have to be more careful while interpreting something out of numbers. That is why for a layman to explain something, we need some chart or diagram. So in a given table, there are so many numbers, but very quickly we can find out the status quo with the help of pivot charts because they are the great way to add data visualizations. Means data can be visualized with the help of pivot charts to present the data. Means we can say in nutshell that with the help of pivot chart, the big data, large data can be presented through a chart or a diagram so that we can have a proper understanding and status quo of the data without involving too much with numbers. That's the crux. Graphs are an excellent way to make a visual representation of data that have been collected and shown. However, without proper labeling, means it must be taken care of that without any proper labeling, your graphs will reflect nothing and become useless. So the graph won't make any sense if you have not labeled it properly. So labeling the x-axis and y-axis and giving title to our graph is very, very important so that it can be understood by common people without having to ask what it represents. Now you have to understand what is the importance of x-axis and what is the importance of y-axis. X-axis of a graph is the horizontal line running side to side. Where the line intersects the y-axis, the x coordinate is found to be 0.
usually the x-axis is very important because it should always represent the independent variable. The independent variable is what? It is one that affects the other variables. Suppose the impact of weather affects us, so the impact of weather becomes independent variables, and our own uh, change in clothing pattern is being affected by the weather. So our patterns are dependent patterns. The y-axis of the graph is the vertical line running top to bottom. Where this line intersects the x-axis, the y-coordinate is 0. Y-axis should be the dependent variable. The dependent variable is the one that is affected by the independent variable, means the earlier one. Means x-axis has independent variable and y-axis has dependent variable. These are some links. Thank you. Now we will move to the practice session. Let me open my Excel sheet. Is my sheet visible to you? Yes, it has come Yes, now. sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay, thank you, thank you. We have some raw data with us as we had earlier. Now we will use and see what are different functions that we should know before starting the use of Excel. Okay, so first we will see what is the function that is the function means we are going to discuss some string functions present in Excel. The first one that we are going to discuss is left function, L-E-F-T, left. We will be putting equal to sign, right, L-E-F. Yes, it has been shown already. Returns the specified number of characters from the start of a text string. मतलब जिस हमने सेल को सेलेक्ट किया है उसमें जो लेफ्ट मोस्ट कैरेक्टर है और लेफ्ट मोस्ट में भी कितने कैरेक्टर्स तक हमें काउंट करना है ये वो आपको बता देगा. तो हम यहां देखते हैं अपने केस में लेफ्ट में, उसके बाद हमने ये लगाया, उसके बाद फिर हमने टेक्स्ट को चुना. इस टेक्स्ट को चुनना है, मान लीजिए कि हमने इसमें इस टेक्स्ट को चुन लिया. कोशिश करना चाहिए कि ब्लैंक जगह पे ही हमें करना चाहिए. तो यहाँ देखिए हमने ब्लैंक जगह पे सेलेक्ट किया हुआ है फॉर्मूले के आउटकम को या रिजल्ट को. उसमें भी हमें कितनी वैल्यू तक का चाहिए, तो ये मान लीजिए 1 2 3 4 5 6. दीपक. इससे हमें सिंपली क्या करना था, फिर से समझिए. हमने सबसे पहले लिखा L-E-F-T इज इक्वल टू साइन पुट करना है. पहले भी मैंने अभी जस्ट रिपीट किया आप लोगों के लिए और इसे हमेशा याद रखना है. L-E-F-T लिखा, उसके बाद ब्रैकेट बनाते हैं हम लोग जिसको हम पैरेंथेसिस बोलते हैं. उसके बाद उसमें हमने लिखा कि हमें लेफ्ट मोस्ट चाहिए. सेंटेंस में लेफ्ट मोस्ट हमारा जो है वर्ड क्या है, तो यूजुअली हमने ये चुना दीपक इज अलोन में. तो दीपक इज अलोन में लेफ्ट साइड, बट ऑब्वियसली कि दीपक है मान लीजिए बहुत लंबा है और हमें फाइंड आउट करना है ढेर सारे डेटा. ये तो उदाहरण के लिए छोटे छोटे हम आपको बता रहे हैं. दिस इज जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल टू गेट अ बेटर अंडरस्टैंडिंग फॉर यू ऑल. उसके बाद हमने देखा कि कितने कैरेक्टर्स तक हमें चाहिए. 6 कैरेक्टर्स तक लिए. अगर हम यहाँ कैरेक्टर कम कर देंगे यहाँ पर, तो मान लीजिए हम इसको 5 कर देते हैं. तब देखते हैं लेफ्ट मोस्ट कितना दिखा रहा है. देखिए दीपा के हटा दिया उसने, यानी ये चाहता है लेफ्ट मोस्ट क्या है और कितने कैरेक्टर्स तक आप चाहते हैं वो लिखेंगे. यहाँ पर आपको वैल्यू वो
रिटर्न करेगा। उसके बाद हम लोग इसी तरह राइट का भी ऑप्शन होता है, वो भी कर सकते हैं। राइट लिखा, उसके बाद हमने एक पैरेंथेसिस बनाया, पैरेंथेसिस में हमने लिखना शुरू किया, या सिंपली यहां से क्लिक किया और सिलेक्ट कर लिया, ये वाला सिलेक्ट कर लिया, ये देखिए रेंज आ गई। फिर इसको बताना पड़ेगा कितने कैरेक्टर्स तक आप लेफ्ट मोस्ट चाहते हैं, वो भी आपको तुरंत बता देगा। तो अगर हम स्टूडियोस में देखेंगे तो 3, मान लीजिए 8 लिखते हैं, फिर देखते हैं रिजल्ट रिटर्न करता है। इस तरह जितनी बार करेंगे उतनी बार हम लोग और सीखेंगे। गलतियां होने पर कभी ये नहीं सोचना है कि हमें नहीं आ रहा। ये देखिए स्टूडियस आ गया, क्योंकि ये 8 कैरेक्टर्स का था इसलिए आ गया। आप यहाँ पर ये ध्यान रखिएगा कि जो आपके रिजल्ट आते हैं, अगर आप कमांड भूल रहे हैं, इसको सिंटेक्स बोलते हैं, सर बेटर जानते हैं, कंप्यूटर के सर एक्सपर्ट हैं। तो यहाँ पर अगर आप क्लिक करोगे तो आपको यहाँ साफ साफ दिखा दे रहा है कि इस सेल पे कौन सा फॉर्मूला लगा हुआ है। ठीक है, ये 2 चीजें हो गई। हम लोग अब आगे बढ़ते हैं। उसके बाद अब हम लोग लेंथ, किसी स्ट्रिंग की लेंथ कितनी है वो हम लोग देखते हैं। तो मैंने ऑलरेडी यहाँ पे किया हुआ है, मैं फिर से आपको करके दिखाता हूँ जिससे आप सीख सकें। इज इक्वल टू साइन लिखेंगे, आप len लिखेंगे, len लिखने से वो समझ जाता है। ये क्या करता है, रिटर्न द नंबर ऑफ कैरेक्टर्स इन अ टेक्स्ट स्ट्रिंग। जितना टेक्स्ट स्ट्रिंग है उसमें कितने नंबर्स हैं वो आपको भी बता देगा 2 मिनट में। उसके बाद हम पैरेंथेसिस डालेंगे, देन वी विल सेलेक्ट directly from clicking the cell, or we can name the cell also by typing it. Like this cell is your M9, we can type it also. Suppose we don't have selected it directly, we can type it also, M9. Now it will return the value. Means this M9, this is the M9, contains 15 characters. Now here you have to point it out that I'm just giving you the scope to answer. I'm increasing the size. Now let me know, is the answer right or not with reference to this particular cell that have been selected and is highlighted by bold border. Deepak is alone. Count it and see if it is 15 or something else. Then I will tell you what I was wanted to communicate. Please, anyone, count the characters in this selected cell. Formula is returning this value, 13, that is sir. 50. How many? 13 है 13 13 sir, 13. Okay. Then it means the Excel is doing something wrong. What do you think? Let me सर know. जो बीच में गैप है ना, आई थिंक उसे भी वो काउंट कर रहा है 215. Yes, exactly. It's also means the spaces are also being counted. Okay, Yes, we sir. can check it. We can recheck it. I'm just going to do it. Suppose we have removed these spaces. Now see what happens. What is the value now? It's 13. Okay. Yes, sir. Fine. Okay. Now the next function. As we have changed the आशीष, एक मिनट। as we have, yes sir. देखो, आप लोगों को इसकी इसलिए बहुत ज़रूरत पड़ेगी क्योंकि प्रोग्रामिंग के अंदर और बाद में जब आप एक्सेल के अंदर और स्टैटिस्टिकल पैकेजेस के अंदर आप इन चीज़ों को कवरोगे। पहली बात तो कैरेक्टर का मतलब होता है जितनी बार भी आपने कीबोर्ड के ऊपर कोई भी की को प्रेस किया, वो चाहे कैसी भी हो, यदि वो आपके कर्सर को मूव करता है परमानेंट के लिए, जो एरो कीज हैं उनको छोड़कर, एरो की आपके कर्सर को मूवमेंट देता है, लेकिन एडिटिंग पर्पस के लिए, टाइपिंग पर्पस के लिए आप कीबोर्ड पे कोई भी की दबाओगे वो एक कैरेक्टर माना जाता है। कैरेक्टर्स 2 तरह के हो सकते हैं, जो विजिबल हैं और इनविजिबल हैं।
विजिबल के अंदर अल्फा और न्यूमेरिक, जैसे ABCD ये आपका अल्फा है, और न्यूमेरिक का मतलब 0 से लेकर 9 तक, वो ये तो विजिबल आपको दिखते हैं। स्पेस बार आप जब दबाओगे तो वो इनविजिबल रहेगा, लेकिन उसकी एडिटिंग में, फॉर्मेटिंग में वो बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। तो जब हम लार्ज स्केल के प्रोग्राम्स लिखते हैं, सॉफ्टवेयर के अंदर जब काम करते हैं, तो हमें कई बार एग्जैक्ट पोजीशन बनानी होती है कि ये चीज़ इस पॉइंट के ऊपर लाई करती है। तो वहाँ पर ये जो कैरेक्टर है, इसलिए आप कई जगह पे आप देखोगे कि कुछ वेबसाइट्स के ऊपर जब आप अपना रिज्यूम पोस्ट करोगे तो आपसे कहेगा कि maximum you can have 5000 characters. So 5000 characters does not mean 5000 words or letters. 5000 characters means you can type 5000 key impressions in that. तो वो सॉफ्टवेयर को अपना डेटाबेस के अंदर मैनेज करने के लिए बहुत ज़रूरी होता है। MS वर्ड और डेटाबेस का मतलब MS एक्सेस, ACCESS, और माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, इनके अंदर कैरेक्टर का बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है, क्योंकि ये चीज़ें डेटाबेस हैं। और एक बार भी आपने की दबा दी, इवन स्पेस बार भी दबाया, वो भी डेटाबेस के अंदर काउंट होता है। तो इसलिए डेटाबेस बहुत बड़ा हो जाता है। और इसीलिए माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर एक फीचर ये भी है कि ये जो ब्लैंक स्पेसेस हैं, अभी जैसे आशीष जी ने दीपक इज अलोन के अंदर ईद से पहले और इज के बाद जो स्पेस बार है उसको हटाया तो वो 13 बन गया। इसके लिए भी एक कमांड भी होती है कि जितने भी उसके अंदर ब्लैंक स्पेसेस हैं वो उनको रिमूव कर देगा। तो हम सॉफ्टवेयर के अंदर वो कई बार सॉफ्टवेयर अच्छे तरीके से चले, इसके लिए हम ब्लैंक स्पेसेस को रिमूव भी करते हैं, क्योंकि ब्लैंक स्पेस की हमें कई बार ज़रूरत होती है, कई बार ज़रूरत नहीं होती। तो ये चीज़ याद रखो, ये वाली बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपको फ्यूचर में काम आएगी जब आप स्प्रेडशीट्स वगैरह में काम करोगे। ओके आशीष, प्लीज़ गो अहेड। ओके सर, नाउ हम लोग अब इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग देखते हैं, लेंथ की बात हो गई है, लेंथ की प्रैक्टिस भी करिएगा, 2-3 एग्जाम्पल करेंगे तो आ भी जाएगा। शुरू में कमांड देंगे तो एरर शो हो सकता है, आप जरूर कोई गलती कर रहे होंगे और सिंटैक्स फ्रेमिंग में दिक्कत हो रही होगी, लेकिन वो धीरे धीरे यूज करते करते और सर के साथ आप सीखते जाएंगे तो बहुत ईजी हो जाएगा आपके लिए। उसके बाद हम लोग अब नेक्स्ट पे बढ़ते हैं, मिड मिड स्ट्रिंग फंक्शन पर। तो ये क्या है, मिड क्या है, व्हाट इज मिड? यहां पर हम एक जो यूजुअल करते हैं इज इक्वल टू साइन लगाएंगे, उससे पहले हम लोग लिखेंगे मिड। मिड रिटर्न्स द कैरेक्टर्स फ्रॉम द मिडिल ऑफ अ टेक्स्ट स्ट्रिंग गिवन अ स्ट्रिंग पोजीशन एंड लेंथ। हमें क्या करना होगा, हमें उसकी पोजीशन बतानी होगी कि बीच में चाहिए, उसके लिए हम कमांड दे रहे हैं नंबर कितने तक चाहिए बीच में, उतने तक के वो बीच से स्ट्रिंग ले लेगा। स्पेस के साथ रहेगा तो उसको भी काउंट कर लेगा, विदाउट स्पेस रहेगा उसको भी वो काउंट कर लेता है। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं इसी पे, मिड पे ही मिड है। अब इसमें हम पैरेंथेसिस जैसे यूजुअली लगाते हैं लगा देंगे। उसके बाद हमें मिड किसका चाहिए, तो हम पकड़ लेते हैं, उन्हीं को पकड़ लेते हैं, उसी पे काम करते हैं। इनका चाहिए मिड, और किस नंबर से वो स्टार्ट हो रहा है या तो वो दे दीजिए, नहीं तो अपने हिसाब से वो एडजस्ट करता है। तो अगर हम यहाँ पर मिड देख रहे हैं तो 3 और 3 6 7 8 से स्टार्ट हो रहा है, तो यह हमने लिख दिया 8। और कितने चाहिए आपको कैरेक्टर्स, तो आप इस अगर हमें पाना है तो वो 2 है। इज, ये रिटर्न किया वैल्यू इज। तो इसमें हमने क्या देखा कि जो हमारा मिडिल करेक्टर है उसने उसको फाइंड आउट कर दिया, क्योंकि हमने यहाँ प्रॉपरली उसको कमांड दिया और हमें पता था कि ये यहीं पर है, इसलिए वैसे वैसे कमांड हमने लिखा। अगर हम इसको 3 कर देंगे, इसको हम मान लीजिए 4 कर देते हैं, तब देखते हैं क्या होता है। इज यहां तक ले लिया, यानी कि हमें इसको डिफाइन करना है कि हमें कहां से कहां तक का
मिडिल का रेंज चाहिए, और अगर नहीं सिंपली करते हैं तब भी देखते हैं कि क्या होता है, तब ये क्या लौटाता है। ये फंक्शंस भी प्रोग्रामिंग वगैरह में बड़ा बाद में काम आएगा। ये देखिए, इसमें हमें आर्गुमेंट्स उसने समझा नहीं, इस वजह से उसने एरर शो किया। तो ये मिड का था। मिड के बाद इसको थोड़ा प्रैक्टिस करिएगा। मिड के बाद अब हम लोग आते हैं फाइंड करने के, कि कुछ चीजें अगर हमें फाइंड करनी है कोई वैल्यू, तो वो हम कैसे फाइंड करेंगे। उससे पहले हम आपसे डिस्कस करना चाहेंगे उससे इजी जो है प्रॉपर। तो पहले प्रॉपर पे डिस्कस करते हैं, स्ट्रिंग फंक्शन पे। किस टेक्स्ट को चाहिए वो कमांड आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा, किस टेक्स्ट को प्रॉपर करना है। तो मान लीजिए हमने पूरा इसे सेलेक्ट कर लिया और यहां पर हमने दीपक इज अलोन। जैसे ही हम प्रॉपर कमांड देंगे तो हम यहाँ पर ये देख सकते हैं कि जो इनिशियल लेटर्स वर्ड्स के हैं वो कैपिटल में हो गए हैं। तो अगर हमें ये कमांड तब देना होगा जब हमें ये चाहिए कि हम मान लीजिए किसी चीज का एक्सटेंडेड फॉर्मूला या कुछ फॉर्म लिख रहे हैं, और हमको उसमें ये चाहिए कि हमारे जो भी इनिशियल लेटर्स हमने टाइप किए, क्योंकि टाइपोग्राफिकल एरर हो सकती है कि आपने कहीं आपको दीपक डी जो है स्मॉल से आपने लिख दिया हो, उसको अगर आप सिंपल करेक्शन इससे चाहते हैं तो आप इस कमांड से पहले जो कैपिटलाइज ईच वर्ड वाला जो कमांड होता है अगर, वो वाला कमांड इसमें यहाँ पर काम कर रहा है। अभी इसकी यूटिलिटी सर और बेटर बताएंगे आपको क्लास के बाद 5-7 मिनट का कंफ्यूजन। अगर सर चाहें तो अभी भी सर आपको। आप ये देखो, आप कभी कभी आप किसी वेबसाइट के ऊपर अपनी डिटेल भरते हो, कोई फॉर्म है या आप कहीं पे रजिस्ट्रेशन करा रहे हो किसी इवेंट में पार्ट लेने के लिए, तो उसमें आप किसी भी उसमें टाइप करो, सॉफ्टवेयर उसको अपर केस में कन्वर्ट कर देगा, क्योंकि डाटाबेस के अंदर वो अपर केस में जाएगा उसके लिए। तो ऐसी यूज़र के एंड पे प्रॉब्लम हो सकती है, यूज़र भूल सकता है। मान लो आप जब टाइप कर रहे हो आप भूल गए अपर लोअर कहाँ पर क्या करना है, तो सॉफ्टवेयर को उसको इजी प्रोसेस करने के लिए हम कमांड से उसको ऐसा बना देते हैं कि आप चाहे कैसे भी टाइप करो, सॉफ्टवेयर उसको अपने ऑटोमेटिकली कन्वर्ट कर देगा, तो एरर के चांस कम हो जाएंगे। आप नोट करना, कभी किसी वेबसाइट पे आपको ज़रूर मिलेगा ये फंक्शन। बहुत जगह पे जहाँ पे इवेंट्स के लिए रजिस्ट्रेशन होता है वहाँ पे ये कॉमन चीज़ होती है। और अपना जो जैसे दिल्ली गवर्नमेंट की जो वेबसाइट्स हैं या ड्राइविंग लाइसेंस आपने बनवाना है, उसमें आप जब डाटा डालते हो तभी आप देखोगे कि जैसे ही आप एंटर प्रेस करते हो वो सारे का सारा अपर केस उसके अंदर कन्वर्ट हो जाता है। तो वो इसलिए किया जाता है ताकि एरर्स को मिनिमाइज किया जा सके डाटा एंट्री के दौरान। चलो आशीष। जी सर। उसके बाद अब हम लोग बढ़ते हैं ट्रिम फंक्शन पर। ट्रिम, उसके लिए आप इज इक्वल टू करेंगे TRIM, ट्रिम। ये क्या करता है, अननेसेसरी स्पेस जो है इन बिटवीन टेक्स्ट के हटा देता है। तो बहुत सिंपल है ये। जैसे मान लीजिए ये दीपक इज अलोन यहाँ लिखा हुआ है। अभी देखिएगा क्योंकि इसमें सिंगल स्पेस इसलिए वो मिला देगा, तो आप देखिएगा यहाँ रिजल्ट आएगा दीपक इज अलोन। ये देखिए अगर सिंगल स्पेस है तो वो ओके है। अब हम इसको अभी यहाँ स्पेस बढ़ा देते हैं, तब कमांड चेक करते हैं कि तब रिजल्ट क्या आता है। जैसे मान लीजिए ये, अब इसमें हमने स्पेस बढ़ा दिया, अब देखते हैं क्या करता है ये। अब हम लोग इसका रिजल्ट देखते हैं कि अब रिजल्ट क्या आता है, करके ही देखना होगा। पहले उसकी लेंथ कैलकुलेट करके चेक करो कि कितने कैरेक्टर दिखा रहा है वो, जी जी ठीक। ताकि वहाँ से पता लगे कि ट्रिम करने पे कितना उसने रिमूव किया। हाँ, इससे क्लैरिफिकेशन भी बेटर हो जाएगा। बहुत अच्छा सर ने कहा।
सबसे पहले इसकी हमको लेंथ कैलकुलेट करनी चाहिए, तो उसके लिए हम यहाँ फॉर्मूला दे रहे हैं नीचे, ये है इज इक्वल टू LN। उसके बाद हमें उसे सेलेक्ट कर लेना है यहाँ पे, ये है, इसे हमने सेलेक्ट कर लिया और हमने एंटर किया। 26 कैरेक्टर शो हो रहे हैं। ये देखो कि हमारे जो टाइप वाले करेक्ट लेटर्स हैं वो उतने ही हैं, 13 के 13। दीपक इज अलोन, तो यदि आप अल्फाबेट्स को काउंट करो तो वो उतने ही हैं, लेकिन स्पेस एक्स्ट्रा लगने से लेंथ इंक्रीज हो गई। चलो आशीष। जी सर, अब हम लोग इसको करते हैं ट्रिम। यहां पुट क्या, इज इक्वल टू साइन TRIM ट्रिम। उसके बाद हमने पैरेंथेसिस बनाया और फिर हमने इसको सेलेक्ट किया। M9 सेल भी लिख सकते हैं, सेलेक्ट भी कर सकते हैं, जिसमें आपको सुविधा हो। उसके बाद एंटर किया। दीपक इज अलोन, मान लीजिए इसको थोड़ा बड़ा कर देते हैं। ये देखिए, ये आपको सिंगल स्पेसेस के साथ आ गया। अब इसकी सेल आपको हम कैलकुलेट करके दिखा देते हैं, वो क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे करते हैं, ब्लैंक जगह पे ही फॉर्मूला रिटर्न करते हैं, जिससे सेल की ओवरलैपिंग ना हो। उसके बाद हम इसकी लेंथ देख लेते हैं कितनी है, जब हमने ट्रिम कर लिया तो। यहां से देखते हैं इसकी लेंथ, ये देखिए 15 आ गई। पहले भी जब हम लोग ने कभी कैलकुलेट किया था तो 15 ही आई थी। 13 इसलिए थी कि 2 स्पेस तो मिनिमम रिक्वायर्ड है ही है। तो ये फंक्शन और स्ट्रिंग फंक्शन आपको बहुत क्लियर हो गया होगा। उसके बाद अब हम लोग केस चेंज करते हैं, अपर केस लोअर केस, उसमें भी है फंक्शन, वो भी हम आपको दिखाते हैं। जैसे आप यहाँ देख रहे हैं कि इसमें रनिंग और कैपिटल यानी स्मॉल कैपिटल दोनों तरह से जैसे यूजुअली हम लिखते हैं लिखा हुआ है। तो इसे हम देखेंगे यहाँ पर कि कैसे अपर केस वाला कमांड काम करता है। तो उसके लिए सिंपली हमें यहाँ पर इज इक्वल टू लिखकर अपर कमांड देनी है, टाइप करना है। उसके बाद इसे करना है, उसका चयन हमें कर लेना है। इस बार हम सीमा को मौका देते हैं, यहाँ पर करते हैं और एंटर कर दिया। ये देखिए, ये सब सब अपर केस में हो गया है, सब अपर केस में हो गया है। यहाँ पर ये रिजल्ट आ गया है। यहाँ पर क्या था, रनिंग में था, तो अपर का ये मतलब यहाँ पर है। अपोजिट भी देख लेते हैं क्या होता है। ये देखिए, सब लोअर से लिख गया। सर इस पर सर कुछ आपके रिमार्क्स हैं सर? नहीं, ठीक है। अच्छा अब वो ठीक है सर। चार्ट ग्राफ वगैरह करवा लो। अच्छा सर, ठीक सर। अब हम लोग, ये कुछ स्ट्रिंग फंक्शन थे, अब हम लोग चार्ट और ग्राफ की तरफ बढ़ते हैं। ये देखिए, एक पहले से बना हुआ एक चार्ट है आपके पास। इसे कैसे बनाया जा सकता है, हम इसे कैसे बना सकते हैं, इसको हमें यहाँ पर सीखना होगा। उसके लिए हमारे पास एक रॉ डेटा होना चाहिए। इसमें सिंपली क्या दिया हुआ है, मंथ वाइज टोटल सैलरी दिया हुआ है। अलग अलग मंथ का अलग अलग कलर रैंडम वो देता है, और आप चाहोगे तो उसके कलर आप सेलेक्ट भी कर सकते हो। तो इसको हम लोग देखते हैं। सपोज हमें यहाँ पर एक अलग से हम खोल लेते हैं प्रैक्टिस के लिए अपना नया शीट, और हम यहाँ पर चार्ट बनाएंगे। इससे पहले हम यहाँ से डेटा ले लेते हैं। एक्चुअली दूसरी एक्सेल शीट शायद मैंने क्लिक कर दी है। ये हमारी एक्सेल शीट है जो मुझे चाहिए, इसे हम ले लेते हैं।
एक नई शीट पर ले लेते हैं। अब अगर हम चाहें कि बेसिक पे या मंथ्स पहले एक जगह अलग कर लेते हैं, इनमें से हम लोग सेलेक्ट करके, जिसमें डाउट ना हो, कंफ्यूजन भी ना हो किसी तरह से। यहां पर ले लिया और उसके बाद मान लीजिए यहां पर हम लोग बेसिक पे ले लेते हैं। एक सिंपल एग्जांपल है, आप लोग अपने हिसाब से और भी कर सकते हैं। अब हमें कोई ग्राफ बनाना है तो उसके लिए सबसे पहले हम यहां पर देखते हैं इंसर्ट फंक्शन होता है, वहां पर जा सकते हैं और यहाँ पर हमें मान लीजिए एक पाई डायग्राम बनाना है, पाई चार्ट बनाना है। यहाँ से सेलेक्ट कर लिया, पहले 2D पाई सेलेक्ट करते हैं, 2 डायमेंशनल। थोड़ा सा इसको और ऊपर कर लेते हैं कि विजिबल हो। उसके बाद इसको थोड़ा सा, अब हमें इसमें डेटा रेंज देनी होगी, तो उसके लिए हम लोग यहां से डेटा सेलेक्ट करते हैं, डेटा, उसको डेटा रेंज देना होगा। यहां से ये डेटा रेंज आप दे सकते हैं। तो सीरीज 2 है, तो वहां पे हम इसको पहले देते हैं ये वाला। उसके बाद एक मिनट, इसमें थोड़ा एरर हो रहा है कमांड में। क्योंकि वो उधर मंथ सेलेक्ट हो गया ना, हेडिंग ओनली मंथ जी नेम्स हैं, वो बोल लो। हाँ, यहाँ से जनवरी से दिसंबर। जी। और फ्रेंड्स, इसका एक दूसरा वो भी तरीका है कि यदि आप फिगर्स को हाईलाइट करके और सीधा ग्राफ के ऊपर क्लिक कर दोगे तो ऑटोमेटिकली भी वो ग्राफ बना देगा। मीन्स पहले डाटा रेंज हाईलाइट कर लो, सेलेक्ट कर लो, फिर ऊपर इंसर्ट में जाओ और टाइप ऑफ ग्राफ क्लिक करो, तो वो क्विक वे वो भी है। अच्छा, वो सर वाला जो मेथड है उससे भी करके देख लेते हैं। नहीं, ये यहाँ नहीं, ऊपर इंसर्ट मेनू के अंदर ओके, ग्राफ में जाएंगे। इंसर्ट, उसके बाद कॉलम ग्राफ कोई भी है, 2D पाई सेलेक्ट करते हैं। ये ऑटोमेटिकली उसने उस तरीके से उसको बना दिया। इसको आप उसके बाद अपने हिसाब से मॉडिफाई भी कर सकते हैं। आप इसमें टाइप ऑफ ग्राफ भी चेंज कर सकते हो। आप यहीं का यहीं करके जाके टाइप चार्ट्स में वापस जाओ और बार चार्ट, वो चेंज चार्ट टाइप सबसे पहला ऑप्शन नीचे जो दिखा रहा है, ओके, यस सर, कॉलम्स वाले को करो। ये वाला, हाँ, ये हम 2D कॉलम सेलेक्ट करते हैं। तो ये वो देखिए, ऑटोमेटिकली वो अरेंज कर देगा। और बाय डिफ़ॉल्ट जो ये लेफ़्ट में वो है, उसको वो एक्स एक्सिस में दे रहा है, और हमारी जो वैल्यूज़ हैं, फिगर्स हैं, वो वाई एक्सिस में आ रही हैं। जी। ये शॉर्टकट मेथड था। और इसके बाद अगर हम लोग और भी इसमें कुछ चेंजेस चाहते हैं, हम लोग उसके डायग्राम्स के या चार्ट्स के अदर टाइप्स चाहते हैं, तो वी हैव सो मेनी टाइप्स, हम यहाँ से ले सकते हैं, सेलेक्ट कर सकते हैं। और अगर हम लोग बार में ऐसा बार चाहते हैं इस स्टाइल में, या पिरामिड चाहते हैं, तो उसे भी कर सकते हैं। 3D बार भी हम कर सकते हैं। पाई चार्ट में भी हम 3D पाई चार्ट भी कर सकते हैं, वो थोड़ा और अट्रैक्टिव और ऐसा रियल टाइप जैसे दिखता है ये। और यहाँ पर आपने देखा ये जो बने हैं ब्लॉक्स, ये आपके मंथ्स को शो कर रहे हैं अलग अलग। इसी तरह आप नंबर ऑफ स्टूडेंट्स या आप
ढेर सारे रेंज के सेल्स को कैलकुलेट कर सकते हैं, उसके बाद भी आप उसका रिजल्ट दे सकते हैं। एक दो एग्जाम्पल हम लोग इसमें और देखते हैं डायरेक्ट मेथड से ही। मान लीजिए कि और ज्यादा वैल्यूज लेनी है, तो यहां से यहां तक की लेते हैं। अब 3 वैल्यूज लेके चल रहे हैं हम लोग। उसके बाद हम लोग उसका कॉलम में देखना चाहते हैं, उसमें भी हम लोग 2D चाहते हैं। तो ये देखिए ये बन गया। इसको आप मूव कर सकते हैं, अगर ओवरलैप कर रहा है तो आप साइड में यहाँ भी ले जा सकते हैं, यहाँ चला जाएगा। इसके भी आप डिफरेंट टाइप्स ले सकते हैं। देखिए 2 सीरीज है तो कलर अलग अलग है, क्योंकि काफी छोटा दिख रहा है, इसको आप बड़ा भी कर सकते हैं। और इस चार्ट को अगर आपको कहीं ले जाकर पेस्ट करना है वर्ड फाइल वगैरह में भी, तो वहां भी ये चला जाएगा। साथ ही साथ आप इसको पाई में देखेंगे तो और आपका विजन क्लियर हो जाएगा। जैसे कि ये है पाई ग्राफ। इसमें हम पहले 2D पाइस का देखते हैं। ये देखिए अलग अलग कलर कैरेक्टर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब इसमें हम मान लीजिए बार इस साइड से चाहते हैं इस तरह का, तो सिलिंड्रिकल, तो हम ऐसे इसको भी ले सकते हैं। इसको बड़ा करने पर और क्लियर होगा, क्योंकि जो सीरीज 2 और सीरीज 1 है वो अलग अलग कलर को रिप्रेजेंट कर रही है। आप लोग पहले 2 वैल्यूज की चार्ट और ग्राफ्स बनाकर देखिएगा, और इसके बाद अभी अगर कोई क्वेरी है इससे रिलेटेड तो अपनी क्वेरी रख सकते हैं, हम लोग बात कर सकते हैं। सर फ्रेंड्स कोई क्वेश्चन हो तो बोलो। नो सर, क्लियर है सर यहाँ तक। ओके, आप लोग प्रैक्टिस करिएगा इसकी। और सर जी एक सर फॉर्मूले सेंड कर सकते हो आप एक बार, एक साथ जो आप पे लिखे हुए हो कहीं पर? ये कमांड सिंटेक्स बोल रहे हैं? यस सर। सिंटेक्स तो भेजे जा सकते हैं, लेकिन बेटर होगा इसकी प्रैक्टिस करें, और जरूरत पड़ने पे मैं सर से बात करके भेज भी दूंगा, और सर से कोऑर्डिनेट कर लूंगा इस रिलेशन में। यस सर, ठीक है, बाकी प्रैक्टिस कर। हाँ प्रैक्टिस करिए, क्योंकि कभी कभी मुझे भी कभी कभी लगता है कोई चीज मैंने बहुत दिनों से प्रैक्टिस नहीं की होती है तो एक्सेल में दिक्कत होती है, क्योंकि एक्सेल बहुत पावरफुल टूल है। जरा सा भी सिंटेक्स गलत चला जाएगा तो रिजल्ट नहीं आता, जिससे अभी थोड़ी बहुत एरर हुई इस समय। सर प्रोग्रामिंग में भी एरर आ जाता है सर, मैंने भी कई बार किया है, तो एक एक सिंटेक्स से एरर आ जाता है। बिल्कुल आएगा, क्योंकि वो प्रोग्राम्ड है ना। कंप्यूटर प्रोग्रामिंग बहुत एकदम मैथमेटिकल है, उसमें जरा सा भी कुछ भी गड़बड़ी हुई तो फिर रिजल्ट आपको आएगा ही नहीं, और एरर शो करना शुरू कर देगा। कभी कभी ये हो सकता है कि आपने कोई चीज कॉपी पेस्ट की डेटा, और जब कॉपी पेस्ट कर रहे हैं डेटा तो वहां पर फॉर्मूला भी चला गया। अब आप उस पर काम नहीं कर पाएंगे अलग से कुछ नया, जब तक कि आप उसे फॉर्मूला को वहां से एलिमिनेट नहीं करेंगे। और पेस्ट करते समय वैल्यूज ओनली को आपको पेस्ट करना चाहिए। यस सर, यस सर। बिना प्रैक्टिस के तो एक्सेल सर इजी भी नहीं है, बहुत हार्ड है एक्सेल। हार्ड नहीं है ये एक्चुअली, जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे, और सर आपके साथ में है तो बिल्कुल हार्ड नहीं है आपके लिए। सर ऑनलाइन में प्रॉब्लम हो रही है, ऑनलाइन ऑफलाइन में तो बेटर होता है। ऑफलाइन एक जरा करके इंटरेक्ट करिए तब फिर बात हो पाएगी। हाँ पहले आप क्या लोग स्वाति क्या बोल रही? नेक्स्ट वीक में मैंने उनको बोल दिया है वहाँ पर लैब में जाके आप प्रैक्टिस कर सकते हो, मैं भी देखता हूँ। और मंडे को एक प्रोग्राम है जिसमें वीसी उसको इनॉग्रेट कर रहे हैं, तो हो सकता है, मेरे को एक बार कैलेंडर देखने दो। बट उससे सर पहले सर let me एक दो stop. ऑफलाइन क्लासेस रख लीजिए